Good morning students. So in previous video or on yesterday's video, we have seen the meaning of the endorsement of the bill. So before moving further, let it revise it quickly that what is endorsement of bill. Now endorsement of bill means when the drawer or the holder of the bill is endorsing the bill to another person or is transferring his bill to another person is called endorsement of bill. अगर X ने अपना बिल ट्रांसफर किया Z को तो उसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल. क्लियर? द वन द होल्डर ऑफ द bill who is endorsing the bill, he is the endorser, and on whose name the bill is endorsed, that person is called endorsee. So now see, when there is a concept of endorsement of a bill, how you are going to pass the entry. Now here you have to pass the entries in three of the books. One is in the books of drawer, one is in the books of drawee, and last in the books of endorsee, जिसको बिल ट्रांसफर किया है. इन तीनों के बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है. नाउ अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में जो आप जो करते थे सेम वही एंट्रीज रहेंगी. व्हेन गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट तो आप क्या एंट्री पास करोगे, एंड व्हेन बिल इज ड्रॉन व्हाट एंट्री यू आर गोइंग टू पास. लेटर ऑन एंडोर्समेंट कंसेप्ट का ना, तो उसके बाद हम देखेंगे कि एंडोर्समेंट जब कंसेप्ट आता है देन व्हाट वी हैव टू पास द एंट्री. नाउ सी दे सेड इफ X endorsed a bill in favor of Z, अगर X ने एंडोर्स किया ट्रांसफर किया बिल Z को तो क्या एंट्री होगी. नाउ लिसन, Z को बिल ट्रांसफर कर रहा है, सो हु इज रिसीविंग द बिल, Z, so debit the receiver, Z's account debit. And what is going from X, bill receivable. उसके पास बिल था ना, वो बिल Z को दे दिया तो बिल उसके पास से गया तो to bills receivable. Z's account debit to bills receivable account. Narration will be bill receivable endorsed to Z. आपने बिल दे दिया Z. ना देखो, X ने बिल दिया Z को, Y का कहीं रोल आया, anywhere Y is involved? No. So no entry in the books of drawing. Now X ने एंडोर्स किया था बिल Z को तो Z ने रिसीव किया, राइट. व्हाट Z हैज रिसीव्ड, यहां से क्या गया था बिल रिसीवेबल, तो Z ने क्या रिसीव किया बिल, सो डेबिट द रिसीवर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. नाउ अकॉर्डिंग टू Z, who is the giver of the bill, X, so credit the giver, so to X account, bills receivable account debit to X account, and your narration will be bill receivable received. Clear? Now come to the next. Now if Y pays the amount of bill on due date, अब Y को तो पेमेंट करनी है तो ड्यू डेट आ गई एंड Y is ready to make the payment. तो अब वो पेमेंट किसको देगा, X को देगा? नहीं देगा, क्योंकि X के पास तो बिल ही नहीं है. बिल किसके पास है, Z के पास है, तो Y पेमेंट किसको करेगा, Z को करेगा. तो X की बुक में कोई एंट्री पास होगी, नो एंट्री, बिकॉज X इज नॉट रिसीविंग द पेमेंट. नाउ Y इज मेकिंग द पेमेंट, Y पेमेंट कर रहा है तो इसके पास इसका बिल आ जाएगा. इसके पास जो इसका बिल था वो क्या था, बिल्स पेबल, सो बिल्स पेबल अकाउंट. Y is making the payment, so Y से क्या जाएगा, कैश और बैंक, so to bank account. And your narration will be the amount of bill paid on due date, bills payable account debit to bank account. Now Y has made the payment to whom, Z, so Z ने payment receive की, so what comes to Z, bank, so bank account debit. And what goes from him, bill receivable, जो बिल आया था अब इसने बिल वापस कर दिया. And your narration will be the amount of bill received, so bank account debit to bills receivable account. So this is the only correct form to pass the entries. Again I am telling you, now here you have to pass the entries in three of the books.
तो अगर आप अलग अलग करके पास करोगे यू विल गेट कंफ्यूज. सो इंस्टेड ऑफ getting confused or to avoid the confusion, pass the entries like this. Endorsing the bill to Z, so your entry will be Z account debit to bills receivable. No entry in the books of Y. He is receiving the bill, so bills receivable, and who is the giver? X to X account. Now Y is making the payment, तो bill तो इसके पास है नहीं, so he will not receive the payment, so no entry. But he is making the payment, so इनके पास वापस क्या आ गया इनका bills paper. What goes from him? Cash or bank. Now he is making payment to whom? Z. So Z is receiving the payment. So what is coming to Z? Cash or bank. So you will debit cash and bank. And what is going from here? Bills receivable. So you will credit your bills receivable account. Clear? So this is the way you have to pass the entry. Now let's take the illustration of this concept. Now see your illustration part. Illustration 7. Now here they said Y owed rupees 26,000 to X. Now understand this meaning. Here they have not given you in simple language कि किसने goods बेचा उधार पे और किसने purchase किया. What they have given you? Y owed rupees 26,000 to X. मतलब Y को देना है 26,000 X को. उसने X से गुड्स उधार पे लिए थे इसीलिए उसको देना है. क्लियर हुआ? यहाँ उन्होंने गुड्स सोल्ड की बात अभी तक नहीं की है तो हम उसकी एंट्री भी नहीं पास करेंगे. See the further. On 5th March 2017, he accepted a bill for rupees 25,000 for 1 month drawn by X in full settlement of his debt. बिल ड्रॉ किया गया 25,000 का 1 महीने के लिए in full settlement of his debt. After that X allowed rupees 1,000 as discount. तो कितने का टोटल था? देखो कितना देना था 26. सेटलमेंट कितने में हुई? 25 में. 1,000 का क्या दिया X ने? डिस्काउंट. नेक्स्ट X endorsed the bill to his creditor Z. I told you ना कि मैं X हूँ, मुझे Y से कलेक्ट करना है, लेकिन एक और बंदा है Z, उसे मुझसे कलेक्ट करना है, राइट? तो Y मुझे देगा और मुझे इसको देना है. तो व्हाट आई विल डू? आई विल एंडोर्स माय बिल टू Z. तो Y सीधा किसको पेमेंट करेगा? Z को. क्लियर हुआ? नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू पास द एंट्री. नाउ फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दैट इज X. नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, दैट इज Y. And lastly in the books of endorsee, that is Z. In these 3 books you have to pass the entry. Now here goods sold की तो बात हुई नहीं अभी क्रेडिट के ऊपर, तो we will not pass the entry. But bill is drawn, bill is accepted, so you are going to pass the entry. On which date? On 5th of March 2017. So write the date 5th March 2017. Now bill is drawn, so X received the bill, so your entry will be bills receivable account debit. And who is the giver of the bill? किसने दिया bill? The giver of the bill is Y. So Y's account. Now जब X ने बिल लिया तो उसने एक डिस्काउंट भी अलाउड किया, तो वो जब डिस्काउंट दे रहा है X, तो फिर वो डिस्काउंट X के लिए क्या है? लॉस है. सो यू विल डेबिट हिज अकाउंट. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. सो टोटल बिल इज ऑफ रुपीज 26,000, तो यू विल राइट 26,000. आपने कितने में एक्सेप्टेंस किया सेटलमेंट? 25,000. डिस्काउंट कितने का दिया? 1,000. क्लियर? Write the narration, acceptance,
received after allowing a discount. After allowing discount of rupees 1000. Clear? Now coming the books of drawing. Why? Bills payable इन्होंने किया. Who is the receiver of the bills payable? X. So you will write here X account debit. What goes from Y? Bills payable. So to bills payable account. तो X ने Y को डिस्काउंट भी दिया. वो डिस्काउंट X के लिए लॉस हुआ, लेकिन Y के लिए प्रॉफिट, इनकम, गेन. तो जो भी प्रॉफिट और इनकम गेन होता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट. सो यू विल राइट हियर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. सो टोटल X को कितना रिसीव करना था? 26. बिल कितने का ड्रॉ हुआ? 25. डिस्काउंट कितने का मिला? 1000 का. क्लियर? राइट द नरेशन. Acceptance received along with a discount of rupees 1000. हो गया? अभी तो देखो, अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में था. बिल ड्रॉ हुआ, इसने एक्सेप्ट किया, इसने दिया. हो गया? यहाँ पे Z इन्वॉल्व हुआ? अभी तक नहीं हुआ. सो नो एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एंडोर्सिंग. Z की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. तो आपकी बुक में ना इस तरह से पास नहीं किया हुआ, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. नाउ ऑन द सेम डेट ही हैज एंडोर्स्ड बिल टू Z. X ने क्या किया? सेम तारीख को बिल एंडोर्स कर दिया Z को. Z को बिल दे दिया. सो हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल राइट नाउ? Z. सो Z's अकाउंट डेबिट. जब आप Z को बिल दे रहे हो तो व्हाट इज गोइंग फ्रॉम यू? बिल्स रिसीवेबल आया था ना, आप वो Z को दे रहे हो तो Z को दिया तो आपके पास से चला जाएगा. सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 25,000. क्लियर? राइट द नरेशन. बिल endorsed to Z. अब देखो, अभी ट्रांजैक्शन किसके बीच में? X दे रहा है Z को और Z रिसीव कर रहा है. Y कहीं इन्वॉल्व है यहाँ पे? नहीं है. तो नो एंट्री इन दी बुक्स ऑफ Y. नो एंट्री. क्लियर? नाउ X ने दिया Z को, Z रिसीव करेगा, राइट? तो Z के पास क्या आ रहा है? बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसने दे दिया, इसके पास से गया, गया तो आया किसके पास? Z के पास. सो यू विल डेबिट Z अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. टू हु इज द गिवर ऑफ दिस बिल टू Z? Z को ये बिल कौन दे रहा है? X. सो X इज द गिवर. सो credit the giver. So X account and bill will be of rupees 25,000. Right? Now write the narration. Bill receivable received. हो गया? Now see. Immediately the bill was duly met on due date. अभी बिल met हो गया on due date, मतलब mature हो गया, पेमेंट कर दी गई. So bill was drawn for 1 month. तो 1 month देखो, from 5th of March to 5th of April. अप्रैल हो गया, 3 days of grace. तो 6th, 7th and 8th. तो bill will mature on 8th of April. So 8th April 2017. Now here bill is getting mature.
तो देखो जो x था, x ने तो अपना बिल किसको दे दिया, z को। तो जब y पेमेंट करेगा तो वो किसको करेगा, जिसके पास बिल है। x के पास बिल है, नहीं है, तो क्या इसको पेमेंट वो देगा, नहीं देगा। सो नो एंट्री। बट y पेमेंट कर रहा है ना, तो जो वो पेमेंट करेगा उसके पास क्या आ जाएगा, उसका बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट गोज फ्रॉम हिम, पेमेंट कैसे कर रहा है, बैंक के जरिए, तो टू बैंक अकाउंट। एंड द अमाउंट विल बी 25,000 एंड हियर आल्सो 25,000। नरेशन क्या लिख दोगे, the amount of bill paid on due date। क्लियर बच्चा, ये तो हो गया ना। इसने पेमेंट कर दी, पेमेंट की, तो पेमेंट रिसीव किसने की, जेड ने रिसीव की। जेड ने रिसीव की तो कैसे रिसीव की, बैंक के जरिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट। एंड जब ये रिसीव कर रहा है तो इसके पास तो बिल था ना, अब पेमेंट आ गई, तो ये इसका बिल इसको वापस कर देगा। तो व्हाट गोज फ्रॉम हिम, बिल रिसीवेबल। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 25,000, 25,000 एंड योर नरेशन विल बी द अमाउंट ऑफ बिल received on due date। Clear? So this way you have to pass the entry। हम वही सीक्वेंस, वही फॉर्मेट फॉलो करते आ रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया। If you will see the solution part, you will get confused, क्योंकि वहां पे आपको बताया नहीं कि यहाँ नो एंट्री पास होगी, यहाँ पे भी एंट्री पास नहीं होगी और वहां भी एंट्री पास नहीं होगी। What they have shown you? 2 entries here, 3 entries here, 2 entries there. You should understand the concept ना, कि यहाँ पे हमने 2 एंट्री पास की, इसमें हमने क्यों इतनी एंट्री पास की या फिर उसमें क्यों पास की। सब में दो एंट्री आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, किसके साथ कौन सी एंट्री नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो यू विल पास एंट्री लाइक दिस ओनली। क्लियर? Now again I am telling you, after understanding the concept, you will not see this solution part. You got the concept now? Now you will take it out your book and you will read the question, illustration wala only, and you will solve without looking this video and the solution part which is given in your book. Clear? Now let's move to the next concept of the bills of exchange. Now next topic is when bill is sent to bank for collection. Now see, there is lot of difference between discounting the bill from bank and when we are sending the bill to the bank for collection. Sending the bill for collection to the bank means you are giving your bill to bank to collect the payment on your behalf. ठीक है, आप बैंक को दे रहे हो कि वो आपके बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट कर ले। नॉट बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड, जिस दिन बिल मेच्योर होगा उसी दिन पेमेंट कलेक्ट करनी है, और बैंक आपको तभी देगा पेमेंट जिस दिन वो पेमेंट रिसीव करेगा, नॉट बिफोर दैट डेट। वो आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में आपका क्या था, यू नीड ऑन द स्पॉट पेमेंट, तो आप बैंक पे जाके डिस्काउंट करवाते हो, बैंक को बिल देते हो, बैंक उसके बिहाफ में आपके अकाउंट में पेमेंट डाल देता है, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है, आपको पैसे दे देता है कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके, आप वहां पेमेंट रिसीव कर लेते हो। बट हियर सेंडिंग टू बैंक फॉर कलेक्शन मीन्स कि बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहा है। वो क्रेडिट कब करेगा, जब वो एक्चुअल में रिसीव करेगा उस बिल से पेमेंट, तब वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्लियर? नाउ सी,
bill is sent to bank with the instruction to keep the bill till maturity. बिल बैंक को दिया जाता है किस इंस्ट्रक्शन के साथ कि ये बिल आपको अपने पास रखना है जब तक मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती. एंड कलेक्ट्स इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑन दैट डेट. और जिस दिन मेच्योरिटी डेट आएगी उस दिन मेरे बिहाफ में आप उससे पेमेंट कलेक्ट करना. क्लियर? इन सच अ केस बैंक विल नॉट क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट. इस केस में बैंक कभी भी कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा. टाइम से पहले, मेच्योरिटी से पहले क्रेडिट नहीं करेगा. Until the amount of bill is actually realized by it. कब तक नहीं करेगा? जब तक बिल एक्चुअली रियलाइज्ड नहीं हो जाए, जब तक उस बिल की पेमेंट आप एक्चुअली रिसीव नहीं कर लो. जब आप एक्चुअली रिसीव करोगे तो बैंक आपको क्रेडिट करके दिखा देगा, बट नॉट बिफोर द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पीरियड. अंडरस्टूड? अगेन सी, द बिल इज सेंट टू बैंक with the instruction to keep the bill till maturity and collects its amount from the acceptor on that date. And in such a case, bank will not credit customer's account until the amount of bill is actually realized by it. Got the concept? Now see how entry you are going to pass. Now this is in the books of drawer X and here is in the books of drawee, that is your Y. Now when starting with आपको एंट्री वही पास करनी है. बिल ड्रॉ किया गया, गुड सोल्ड किया आपने क्रेडिट पे, देन द बिल वाज ड्रॉन. ठीक है, वो एंट्रीज आपकी सिमिलर रहेगी. आफ्टर दैट यू आर सेंडिंग योर बिल टू बैंक. राइट? आप बिल सेंड कर रहे हो बैंक से बैंक को, तो आपके पास से जा क्या रहा है? बिल रिसीवेबल, क्योंकि आप वो बिल बैंक को दे रहे हो. सो बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट, सो टू बिल रिसीवेबल. व्हाई योर बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट? बिकॉज यू आर गिविंग योर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. आप बिल दे रहे हो कलेक्शन के लिए बैंक को, तो यू विल डेबिट योर दैट अकाउंट. सो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट to bills receivable. Now these transactions were between drawer and the bank. क्योंकि आपने बिल दिया बैंक को, आपके पास से बिल चला गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया. ड्रॉवी का कहीं नाम आया, वाई का कहीं नाम आया नहीं, सो नो एंट्री हियर. Now when the bill is drawn to bank for collection, now after that the bill gets mature on due date. ड्यू डेट आ गई, बिल मेच्योर हो गया, पेमेंट रिसीव हो गई. रिसीव हो गई तो बैंक ने आपको दे दी पेमेंट. सो व्हाट कम्स टू यू? योर कैश और बैंक. आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, सो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट. एंड आपके पास से क्या चला जाएगा? आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक को दिया था, अब आप इसको बाहर निकाल दोगे. बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट, अब आपने इसको बाहर निकाल दिया. क्लियर हुआ? एंड इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉवी के पास क्या होगा? ड्रॉवी के पास आपकी नॉर्मल एंट्री, बिल मेच्योर हो गया ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज फ्रॉम हिम? कैश और बैंक, सो टू बैंक अकाउंट. एंड नरेशन विल बी द अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन due date. Clear? So this is the difference between the discounting of the bill and bill sent for collection. What you just have to do? Bill sent for collection to bills receivable. Bills receivable is going out. Now the bill is realized. You are receiving the payment. So bank account debit. Now what is going from you? Bills receivable was already gone now. Now what is going from you? Bill sent for collection. So credit your bill sent for collection account. And your narration will be bill collected by bank. Clear? So this is the concept of bill is sent to bank for collection. Now we will solve the illustration related to this concept in the next video. Till that time you have to see the illustration
endorsement of a bill, solve the illustration and practical questions related to that, then understand the concept of bill sent to bank for collection. And the questions related to this we will solve in the next video. So see the video carefully, understand it carefully and do your work completely. Clear? So this is the videos for today. Thank you for seeing the video and understanding the concept. Thank you students.